So hello and welcome to EduMiles Academy. So today we are going to discuss the important newspaper articles from 4th September 2022. So you can also join our WhatsApp group for more study materials from the link given in the description below. So these are the rest of the topics that we are going to cover in today's session. So the first topic, as you can see, that is about the Tibetan Democracy Day. Now, to be honest, the dates and the years regarding the Tibetan Democracy Day are not very significant for our examination. But I've taken this topic in order to discuss about some of the perspectives about the Sino-Indian relation, that is about the Indo-Chinese relations. ठीक है, तो इस टॉपिक के हेल्प से हम देखेंगे यहाँ पे लाइक नॉट एवरीथिंग बट एटलीस्ट सम ऑफ द इम्पोर्टेंट पर्सपेक्टिव्स अबाउट द इंडिया चाइना रिलेशन के बारे में. ठीक है, सो एज आई टोल्ड यू दैट द टिबेटन डेमोक्रेसी डे इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर अस. ठीक है, बट द टॉपिक हैज बीन इंक्लूडेड इन दिस न्यूज़पेपर एनालिसिस सो दैट वी कैन डिस्कस अबाउट सर्टेन पर्सपेक्टिव्स ऑफ द एवर कंट्रोवर्शियल सिनो इंडियन रिलेशंस. ठीक है, सो यू नो कि चाइना बीइंग आवर इमीडिएट नेबर, सो आई वुड रिकमेंड यू गाइस टू नो एज मच about this relation as possible. ठीक है, so there are less chances for any question to be asked in prelims, but in case of mains, the more you know, the better answers you'll be able to frame or write. ठीक है, so the news is about the celebration of the Tibetan Democracy Day. ठीक है, so it is the news says it is the 62nd anniversary of the Tibetan Democracy Day, which was observed on Friday. Okay, तो ये जो न्यूज़ है इसके बारे में हम बात करेंगे अबाउट द टिबेटन डेमोक्रेसी डे एंड ऑल्सो अबाउट द रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड चाइना. So the Tibetan Democracy Day is actually not observed by the people who currently reside in Tibet, in present-day Tibet, but it is actually observed by the refugees of Tibet who are currently residing in India and various other parts of the world. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, सो टिबेटन डेमोक्रेसी डे वाज मार्क्ड विद द इनॉग्रेशन ऑफ द टिबेटन गवर्नमेंट इन एक्साइल. आई विल टेल यू व्हाट इज गवर्नमेंट इन एक्साइल. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट इन एक्साइल. हम इसके बारे में बात करेंगे बहुत जल्दी. तो ये गवर्नमेंट इन एक्साइल यहाँ पे इनॉग्रेट हुआ था ऑन September 2 इन धर्मशाला. तो इसी को, ये जो एनिवर्सरी है, इसी का एनिवर्सरी मार्क करने के लिए टिबेटन डेमोक्रेसी डे ऑब्जर्व किया जाता है बाय द रेफ्यूजीज फ्रॉम टिबेट. ठीक है, बाय द रेफ्यूजीज फ्रॉम टिबेट. नाउ वी लुक एट सम at the historical perspective of Tibet. अब देखिए, Tibet अगर आप देखोगे till 1950 it used to be an autonomous, it used to be independent in nature. We won't go to the 13th century period of the Yuan dynasty or the Qing dynasty के period में हम नहीं जाएंगे. We will just confine ourselves to the recent past में हम रहेंगे. तो recent past में अगर आप देखोगे till 1950 Tibet was independent in nature, but in 1948 or 49 यहाँ पे क्या हुआ था, the Communist Party of China under Mao Zedong it came into power. ठीक है, and after coming into power it ascertained that Tibet was very much an integral part of China only, so it cannot be an autonomous region, it should be under the Chinese occupation. And as such what it did was that it basically it attacked Tibet and acquired it. And during this attacking procedure आप कह सकते हो कि during this acquisition procedure the army of China, that is the People's Liberation Army, तो इन्होंने क्या किया था, they actually like they were very harsh in nature and they conducted various atrocities on the Tibetan monks. Okay, so like what they did was that they went for forced abortion, then they went for the sterilization of the Tibetan women, and also they tried to shift the Chinese population into the Tibetan region. Now why did they do so? ये इन्होंने इसीलिए किया था so that ये जो टिबेटन जो population है, so that they become minority in their own region. Are you getting my point? So that they become minority in their own region, और ताकि बाद में ऐसा कुछ भी इंडिपेंडेंस डिक्लेरेशन वाला सीन ताकि फ्यूचर में ना हो, तो इसीलिए they were trying to go forward, like the People's Liberation Army, they were actually trying to go for cultural genocide we can say. ठीक है, तो अपने ही जगह पे they were trying to make the Tibetans minority. ठीक है, so that in the future no such revolutions or no such dissent would be coming from that particular region. Are you getting my point? तो इसी कारण से यहाँ पे क्या हुआ था, 1950 के बाद में यहाँ पे बहुत सारा atrocities हुआ था, और इसी atrocities के कारण, because of such atrocities only, what happened in 1959 साल में क्या हुआ था, the religious leader, यहाँ पे जो लीडर थे अंदर टिबेटन रिलीजन, दैट इज दलाई लामा, तो उन्होंने क्या किया था, ही वाज बिकॉज ऑफ द फियर फ्रॉम द एट्रोसिटीज फ्रॉम द आर्मी ऑफ द चाइना, तो उन्होंने क्या किया था, चाइना का जो आर्मी का जो एट्रोसिटीज है
इसको एस्केप करने के लिए ही बेसिकली फ्लेड टू इंडिया along with his supporters or you can say along with his followers. तो अपने followers के साथ उन्होंने क्या किया था, तिब्बत छोड़ के वो इंडिया आ गए थे, ठीक है। और तब से आपको पता होगा कि he has been a guest of India. आपको पता होगा कि he has been residing in India at a place called Dharamshala, ठीक है। Now see what happened was that now as a result of India providing refuge you can say or asylum to Dalai Lama in 1959 का जो टाइम है, 1960 का जो टाइम है, तो उस टाइम में because India provided asylum to Dalai Lama and his supporters, तो इसके कारण क्या हो गया था, this finally culminated into the Sino-Indian War of the year 1962. तो 1962 में जो Indian Chinese War था, this was actually an outcome of India providing an asylum to Dalai Lama and his supporters. तो यहाँ पे देखिए because इस केस में क्या हुआ था, China had actually accused India of violating the terms of पंचशील एग्रीमेंट। तो पंचशील एग्रीमेंट जो साइन हुआ था 1954 में, इसके बारे में भी हम देखेंगे। तो दिस बेसिकली लेड टू द फर्स्ट इंडो चाइना वॉर, आप कह सकते हो द इंडो चाइना वॉर ऑफ द ईयर 1962। एंड बिकॉज ऑफ दिस 1962 वॉर ऑफ इंडो चाइना, यहाँ पे क्या हुआ था, इट वाज फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेन नेशनल इमरजेंसी वाज डिक्लेयर्ड इन इंडिया, ठीक है। 1962 में आपको यू शुड नो दैट नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर हुआ था पहला बार के लिए। इंडिया में 3 बार नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर हो चुका है आज तक, तो 1962 में पहला बार डिक्लेयर हुआ था एंड इट वाज बिकॉज ऑफ द इंडो चाइनीज वॉर ऑफ 1962, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अबाउट सी अबाउट मतलब यहाँ पे क्यों वायोलेशन माना जाता है इसको। अब देखिए 1954 का जो टाइम है, इसमें क्या हुआ था, इन द पीरियड ऑफ 1954, सो द देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया दैट इज मिस्टर जवाहरलाल नेहरू, तो उन्होंने क्या किया था, इन ऑर्डर टू प्रमोट द फ्रेंडली रिलेशंस, ठीक है, इन ऑर्डर टू प्रमोट द फ्रेंडली रिलेशंस विद आवर नेबर्स, विद आवर इमीडिएट नेबर्स यू कैन से दैट इज चाइना, तो इन्होंने क्या किया था, ही बेसिकली साइंड द पंचशील एग्रीमेंट, ठीक है। तो ये पंचशील एग्रीमेंट साइन हुआ था इन द ईयर 1954, और इसी टाइम में आपने शायद सुना होगा अबाउट दी स्लोगन्स लाइक हिंदी चीनी भाई भाई, तो ये उसी टाइम का ही स्लोगन है। तो जहां पे इन ऑर्डर टू प्रमोट द फ्रेंडशिप बिटवीन इंडिया एंड चाइना 1954 में क्या साइन हुआ था, ये पंचशील एग्रीमेंट साइन हुआ था। नाउ व्हाट इज दिस पंचशील एग्रीमेंट? पंचशील एग्रीमेंट इज नथिंग बट अ सेट ऑफ 5 प्रिंसिपल्स है। यहाँ पे 5 प्रिंसिपल्स है। प्रिंसिपल्स फॉर व्हाट? प्रिंसिपल्स फॉर द पीसफुल को एग्जिस्टेंस, ताकि ये जो इंडिया और चाइना जो है, बिकॉज देयर आर लार्ज कंट्रीज, बिकॉज देयर एस्पिरेशनल कंट्रीज, तो ताकि दे लिव इन अ पीसफुल एनवायरनमेंट, तो इसी कारण से यहाँ पे साइन हुआ था इंडो चाइना का जो ये पंचशील एग्रीमेंट है। अब इस एग्रीमेंट में क्या क्या है? इस एग्रीमेंट में बात होता है अबाउट द पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, अबाउट द म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स टेरिटोरियल इंटेग्रिटी एंड सोवरेनिटी। नाउ दिस वाज वन पॉइंट अंडर व्हिच इंडिया वाज क्रिटिसाइज्ड, और इंडिया आप कह सकते हो इंडिया वाज क्रिटिसाइज्ड, और इंडिया वाज टर्म्ड दैट इट वायोलेटेड द पंचशील एग्रीमेंट। बिकॉज अब देखिए ऐसा हुआ था कि ये जो तिब्बत है ना, द तिब्बत रीजन वाज एक्चुअली, ये इंडिया आप कह सकते हो कि इंडिया भी इट एक्सेप्ट्स द चाइना, मतलब यहाँ पे जो चाइना सोवरेनिटी है ना तिब्बत के ऊपर, तो इसको एक्सेप्ट करता है बेसिकली, ठीक है। दिस इज एक्चुअली एक्सेप्टेड बाय इंडिया। तो अगर ये एक्सेप्ट करता है, देन अगेन अगर आप किसी मतलब वहाँ का जो लीडर है, इफ यू प्रोवाइड एजाइलम, देन डेफिनेटली इट वुड बी सीन एज अ वायोलेशन ऑफ द टर्म, है कि नहीं। तो इसी बेसिस पर यहाँ पे बिकॉज चाइना का ऐसा मानना था, इट वाज अ बिलीफ ऑफ चाइना दैट इंडिया एक्चुअली डिड नॉट रेस्पेक्ट द एग्रीमेंट्स और द प्रिंसिपल्स ऑफ द पंचशील एग्रीमेंट, सो दिस फाइनली लेड टू द इंडो चाइनीज वॉर, ठीक है। और भी यहाँ पे कुछ यहाँ पे एग्रीमेंट में प्रिंसिपल्स है, फॉर एग्जांपल म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस, देन म्यूचुअल नॉन एग्रेशन, देन इक्वालिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट। सो दिस आर द एग्रीमेंट्स, राइट। तो इसमें क्या हुआ था, सो और इसमें देखिए इसके बाहर भी एज आई टोल्ड यू, इंडिया ने ये भी एक्सेप्ट किया था कि यस चाइना सोवरेनिटी ओवर तिब्बत को इंडिया ने एक्सेप्ट किया था, ठीक है। तो ये इसीलिए एक्सेप्ट किया था सो दैट इंडिया का जो रिलेशन है चाइना के साथ, दिस एक्चुअली गेट्स स्ट्रेंथेंड, और दिस एक्चुअली कह सकते हो कि सो दैट द म्यूचुअल टाइज जो है, तो ये ताकि सही रहे, इसी कारण से इसे एक्सेप्ट किया गया था। बट दिस एक्सेप्टेंस ऑफ चाइना सोवरेनिटी, ठीक है, ये जो एक्सेप्टेंस है ऑफ द चाइना सोवरेनिटी ओवर तिब्बत was actually seen by a number of strategic expert। आपको पता ही होगा कि बहुत सारे इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स हैं, तो ये जो स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स हैं, they actually see it as a failure of the Nehruvian foreign policy।
तो नेहरू का जो फॉरेन पॉलिसी है इसका एक फेलियर माना जाता है, फॉरेन पॉलिसी का एक फेलियर माना जाता है, दिस एक्सेप्टेंस। नाउ डू नो व्हाई इसीलिए इसे एक्सेप्टेंस माना जाता है, इसीलिए इसे फेलियर माना जाता है, बिकॉज एक्सपर्ट्स का ये मानना है, ठीक है, एक्सपर्ट्स आर ऑफ द व्यू दैट ये जो डिस्प्यूटेड जो स्टेटस है ना, द डिस्प्यूटेड स्टेटस ऑफ तिब्बत वुड हैव एक्चुअली हेल्प्ड इंडिया टू अवॉइड अ डायरेक्ट बॉर्डर टेंशन अगेंस्ट चाइना। ठीक है, मतलब आप कह सकते हो कि अगर हम यहाँ पे इफ वी वुड नॉट हैव एक्सेप्टेड द सोवरेनिटी ऑफ चाइना ओवर तिब्बत, अगर हम ये एक्सेप्ट नहीं करते, देन आप कह सकते हो देन तिब्बत वुड हैव कंटिन्यूड टू बी एक्टिंग लाइक अ बफर स्टेट। ठीक है, अगर ये बफर स्टेट जैसा रहता है देन हो सकता है, ठीक है, आई एम जस्ट सेइंग कि हो सकता है, इट इज नॉट कि हो ऐसा ही होता, बट ऐसा माना जाता है, एक्सपर्ट्स का ऐसा माना जाता है कि इतना यहाँ पे जो टेंशन जो होता रहता है इन द इंडो चाइनीज बॉर्डर, इन प्लेसेस लाइक लद्दाख, इन प्लेसेस लाइक अरुणाचल प्रदेश, तो ये शायद हम अवॉइड कर सकते थे इफ वी वुड नॉट हैव एक्सेप्टेड चाइना सोवरेनिटी ओवर तिब्बत। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। So in order to summarize the entire kahani, I'll just tell you shortly कि क्या हुआ था। So देखिए 1959 में दलाई लामा along with the number of followers that fled from Tibet to escape from the Chinese atrocities, ठीक है, अब यहाँ पे 1959 में वो आ गए थे इंडिया में, एंड दे एंटर्ड इंडिया वेयर दे वर ऑफर्ड एजाइलम बाय इंडिया। ठीक है, बट इंडिया ने इनको एजाइलम दिया था, एक बात आप ध्यान रखिएगा कि इंडिया ने उनको एजाइलम दिया था नॉट एज अ पॉलिटिकल लीडर बट एज अ रिलीजियस लीडर। ठीक है, इंडिया हमेशा इनको गेस्ट ही मानते हैं, एंड इंडिया डिड नॉट प्रमोट हिम एज अ पॉलिटिकल लीडर बिकॉज अगेन यू कैन से कि दैट वुड बी अगेन टर्म्ड एज अ वायलेशन ऑफ द पंचिल एग्रीमेंट। ठीक है, नाउ विल लर्न अबाउट द गवर्नमेंट इन एक्साइल, व्हाट एक्चुअली इज अ गवर्नमेंट इन एक्साइल। सो द फर्स्ट थिंग यू शुड नो अबाउट द गवर्नमेंट इन एक्साइल इज दैट गवर्नमेंट इन एक्साइल हैज नो पॉलिटिकल कंट्रोल और ऑथोरिटी, इसका पावर नहीं रहता है। तो व्हाट इज गवर्नमेंट इन एक्साइल? इट इज बेसिकली अ गवर्नमेंट व्हिच हैज नो कंट्रोल, और ये क्या करता है, ये खुद को ये क्लेम करता है कि एज इट क्लेम्स इटसेल्फ एज अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट बट इट ऑपरेट्स फ्रॉम सम अदर प्लेस। जैसे कि ये तिब्बत जो है ना, तिब्बत का जो रीजन है, ये मानते हैं कि तिब्बत का गवर्नमेंट यही है। ठीक है, दे वुड बिलीव कि वी आर द गवर्नमेंट ऑफ तिब्बत, बट फॉर द टाइम बीइंग यहाँ पे कोई फॉरेन एलिमेंट्स का इन्वेजन के कारण वी आर ऑपरेटिंग फ्रॉम अ डिफरेंट रीजन, बट एज सुन एज आवर प्लेस इज क्लियर्ड, एज सुन एज मान लीजिए ये जो फॉरेन एलिमेंट्स है व्हेन दे विल क्लियर ऑफ आवर प्लेस, वी विल गो बैक एंड स्टार्ट एडमिनिस्ट्रेटिंग एंड और हैव द पॉलिटिकल अथॉरिटी। So this is what government in exile is. Now this government in exile can also be related to our Indian history point of view. अगर आपको याद होगा 1943 में क्या हुआ था, सुभाष चंद्र बोस ने भी अनाउंस किया था द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, इफ यू रिमेंबर, जिसका नाम क्या था, आजाद हिंद। ठीक है, आजाद हिंद नाम था, तो ये सिंगापुर में ये फॉर्म हुआ था। तो यहाँ पे गवर्नमेंट इन एक्साइल का काम यही है, because our own territory has been occupied by some foreign element, so this is the reason why we are currently operating from a different location. Now as soon as our location, as soon as our own region is freed, we will come back and start controlling, or आप कह सकते हो कि start asserting our political control over the region. ठीक है, so what happened is that 1959 में वो आ गए थे। 1959 में आने के बाद 1960 में what they did was that they conducted their own elections in India। तो इंडिया में देखिए यहाँ पे वोट कौन करेगा अगर इलेक्शंस है, ऑब्वियसली जो रेफ्यूजीज है वही वोट करेंगे। ठीक है, तो 2 सितंबर में यहाँ पे क्या हुआ था, द फर्स्ट इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द तिब्बतन पार्लियामेंट इन एक्साइल ऑब्वियसली, सो टुक देयर ओथ इन बोधगया। यू शुड नो दिट्स अ प्लेस इन बिहार एंड इट्स द सेम प्लेस वेयर बुद्धा हैड अटेन्ड हिज वर्क, यहाँ पे बुद्धा हैज अटेन्ड हिज एनलाइटनमेंट। ठीक है, तो ये बोधगया इज अ प्लेस इन बिहार। नाउ यहाँ पे उन्होंने दे बेसिकली टुक देयर ओथ एंड दे फॉर्म द पार्लियामेंट इन एक्साइल। ठीक है, अब ये बात देखिए इन प्रैक्टिस एक्चुअली क्या होता है, जो तिब्बतन गवर्नमेंट इन एक्साइल है इसे हार्डली कोई मतलब एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट मानते हैं एक्सेप्ट देमसेल्फ। नाउ यहाँ पे दे आर एक्चुअली बिलीव टू द लेजिटिमेट गवर्नमेंट बाय देमसेल्फ एंड ऑल्सो बाय द 1 लाख तिब्बतन रेफ्यूजीज अक्रॉस द वर्ल्ड। अब देखिए मोस्ट ऑफ द तिब्बतन रेफ्यूजीज दे हैड फ्लीड टू इंडिया एंड सम ऑफ द तिब्बतन रेफ्यूजीज आर ऑल्सो फाउंड, आप कह सकते हो कि थ्रू द वर्ल्ड, अक्रॉस द वर्ल्ड यू कैन से। तो ये जो तिब्बतन रेफ्यूजीज है हु आर प्रेजेंट थ्रू आउट द वर्ल्ड, दे आल्सो बिलीव दिस द पार्लियामेंट इन एक्साइल और दिस तिब्बतन गवर्नमेंट इन एक्साइल टू बी द लेजिटिमेट गवर्नमेंट ऑफ तिब्बत। Getting my point? तो यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है इट इज मैनेज्ड बाय अ बॉडी कॉल्ड बाय द सेंट्रल तिब्बतन एडमिनिस्ट्रेशन। फॉर एग्जांपल जो इंडिया है, इंडिया को कौन एडमिनिस्टर करता है, इंडिया को एडमिनिस्टर करता है कौन, इंडिया को एडमिनिस्टर करता है इंडियन गवर्नमेंट। ठीक है, जो इंडियन गवर्नमेंट है, जो स्टेट गवर्नमेंट्स है, नाउ दैट पर्टिकुलर गवर्नमेंट्स एट वेरियस लेवल एडमिनिस्टर्स इंडिया। तो उसी तरीके से द एडमिनिस्ट्रेशन बॉडी इज नोन एज द सेंट्रल तिब्बतन एडमिनिस्ट्रेशन और द CTA।
ठीक है. और and in 1975 there's the apex body of CTA which is known as the Kashag. Now it declared September 2nd as the founding day of the Tibetan democracy, and as such after 1975 this day have been observed annually as the Tibetan Democracy Day. But by whom? By the refugees of Tibet. Getting my point? By the refugees of Tibet. So in short, in 1954, we had signed a Panchal agreement with China to strengthen our ties with China. In 1959, क्या हुआ था? Dalai Lama had fled to India in order to save himself and also his followers and supporters from the atrocities of the Chinese army. In 1962, it finally culminated into the Indo-Chinese War. 1962 में हुआ था, और ये 1959 में जब आए थे, 60 में क्या हुआ था? Elections करके they had formed the Tibetan Democratic Government. ठीक है? On 2nd September 1960, the Tibetan Democratic Government in exile was formed. Getting my point? So this is everything that you should know about this topic. इससे ज़्यादा कुछ भी जानने का ज़रूरत है नहीं. But one thing that we should know is that India का क्या मानना है? जो CTA है या जो Tibetan Democratic Government है, what has India got to say about this? India, देखिए, I have been telling you from the starting of this topic only that India always sees Dalai Lama as a guest. ठीक है. India follows this principle of Atithi Devo Bhava. So as such, India always honors and respect him as a guest. India sees him as a revered religious leader जिसे देखते हैं. ठीक है. India never considers him as a political leader, and as such, India never encourages any kind of political activities by Dalai Lama or his followers or the fellow Tibetans in India. ठीक है. कभी भी यहाँ पे गवर्नमेंट इन एग्जाइल हो या गवर्नमेंट या एनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज इंडिया सपोर्ट और एनकरेज नहीं करता है. इनफैक्ट जो CTA के बारे में मैंने आपको बताया था, CTA इज नॉट ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड बाय एनी कंट्री इन दिस वर्ल्ड. तो इसके साथ नॉट डायरेक्टली रिलेटेड, बट देयर इज अ क्वेश्चन दैट आई हैव गिवन, a please practice question. I want you guys to answer this question in the comment section. I'll share the answer in the upcoming video. Now the next article is about surrogate advertising. So this topic may be asked or may be important from GS paper on social issues perspective. Prelims में chances कम है, but mains में GS paper 1 से कुछ यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है. ठीक है. So what is surrogacy? I hope you have heard about this term surrogacy. अब देखिए, surrogate advertising is a different thing, but surrogacy in आप कह सकते हो in literal sense means a different thing. So what is surrogacy? Surrogacy is basically a process or an arrangement whereby a woman agrees to deliver a baby for another person, और बाद में जाके क्या हो जाता है, that other person becomes the child's parent. Right? So this is what surrogacy is, but surrogate advertising is a different thing. I'll tell you about it. You actually know about it, but I'll tell you more about this surrogate advertising. So why is it in the news? It is currently in the news because the government of India has directed advertising agencies to ensure strict compliance with the guidelines on surrogate advertising. So let's see surrogate advertising के बारे में, and let's look at the guidelines as well. So surrogate advertising. तो देखिए, surrogate advertising, as you can see in the picture, you can see you can see actors like Amitabh Bachchan, Hrithik Roshan, and like they are promoting some brands like Bimal, Signature, and Amitabh Bachchan is promoting Kamala Pasand. ठीक है. तो ये जो आपको पिक्चर दिख रहा है, तो यहाँ पे ऐसा है कि नॉर्मली क्या होता है ना, जो ये एक्टर्स है और या जो टीवी में जो ऐड आता है ना, तो उसमें कोई भी कंपनी डायरेक्टली ये जो टोबैको का प्रोडक्ट्स है वो डायरेक्टली एडवर्टाइज नहीं कर सकते हैं. ठीक है. तो क्या करते हैं कंपनीज, व्हाट दे डू इज दैट दे गो फॉर सरोगेट एडवर्टाइजिंग, मतलब दे सेल अनदर प्रोडक्ट इन दैट ब्रांड नेम. फॉर एग्जांपल बिमल, सबको पता है व्हाट इज बिमल, सबको पता है व्हाट इज कमला पसंद एंड सिग्नेचर आल्सो, है कि नहीं? एवरीवन नोस अबाउट इट. आपने शायद सुना भी होगा रिसेंटली अबाउट द कंट्रोवर्सीज रिगार्डिंग अक्षय कुमार ज्वाइनिंग फॉर बिमल, है कि नहीं? बिमल का जो कैंपेनिंग हुआ था उसमें अक्षय कुमार को काफ़ी हद तक उनको क्रिटिसाइज किया गया था. राइट. अब यहाँ पे ये लोग क्या करते हैं, द कंपनीज व्हाट दे डू इज दैट दे एडवर्टाइज नॉट द टोबैको प्रोडक्ट, बट दे एडवर्टाइज इन द नेम ऑफ सम, आप कह सकते हो सम अदर प्रोडक्ट्स. फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं कि विमल को देखिए, विमल को अभी यहाँ पे एडवर्टाइज किया गया है एज एन इलायची. ठीक है. यहाँ पे इलायची से यहाँ पे एडवर्टाइज किया गया है. उसके बाद आप देखोगे कि नंबर ऑफ थिंग्स हैव बीन, फॉर एग्जांपल द अल्कोहल जो ब्रांड्स है वो प्रमोट करते हैं क्या, दे प्रमोट देयर ब्रांड्स इन द फॉर्म ऑफ म्यूजिक सीडीज. आपने देखा होगा सियाग्राम का म्यूजिक सीडीज आता है. उसके बाद आप देखोगे लाइक मिनरल वाटर, देन क्लब सोडास. दिस इज हाउ दे प्रमोट देयर ब्रांड. ठीक है. दिस इज
how they promote their brand, and this is what surrogate advertising is. So it is basically a form of advertising which is used to promote regulated products. तो ये जो products हैं alcohol and tobacco, this cannot be directly or indirectly advertised in the TV. तो ये क्या करते हैं, वो disguise लेते हैं कुछ other product का. This is what surrogate advertising is. So अब सेंटर ने क्या ऑब्जर्व किया है, अब सेंटर ने यहाँ पे ये ऑब्जर्व किया है कि यहाँ पे many alcoholic जो brands है and beverages है, now they are यहाँ पे जो alcohol brands है, they are being advertised under the name of music CDs, club soda and drinking water, as I already told you. And the tobacco and गुटखा यहाँ पे किस तरीके से हो रहा है, यहाँ पे आप देखोगे कि इलायची के नाम पे हो रहा है, which is known as cardamom, and mouth fresheners के नाम पे. तो this is how they are actually promoted in the disguise of some other product. This is what surrogate advertising is. So in India, if you see, as I told you that the tobacco and the alcohol products, they cannot be advertised. So they cannot be advertised at the various laws. So one such law is the Cigarette and Other Tobacco Products Act 2003. तो इसके अंदर यहाँ पे जो ये प्रोडक्ट्स है इनको एडवर्टाइज नहीं कर सकते, ठीक है. सो नाउ व्हाट द करंट न्यूज यहाँ पे क्या है, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अथॉरिटी व्हिच इज नोन एज द सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, नाउ दे हैव कम अप विद न्यू गाइडलाइंस इन द ईयर 2022. इस गाइडलाइंस ने क्या किया है, दिस गाइडलाइंस हैज आल्सो बैन सरोगेट एडवर्टाइजिंग. तो यहाँ पे पेनल्टी भी प्रोवाइड किया गया है. सो पेनल्टी क्या है, पेनल्टी अगर मान लीजिए कि फर्स्ट ऑफेंस है, अगर पहला बार ऑफेंस है, तो इसके लिए यहाँ पे 10 लाख रुपया का क्या होगा, जुर्माना होगा. देयर विल बी अ पेनल्टी ऑफ रुपीज 10 लाख. अगर मान लीजिए यहाँ पे सब्सिक्वेंट अगर ऑफेंसेस होते रहते हैं बाय द सेम कंपनीज, नाउ दे वुड बी लायबल टू पे 50 lakh as a penalty, and also they would be subjected for imprisonment up to 2 years under this section. ठीक है, अंडर सेक्शंस ऑफ दिस एक्ट यहाँ पे उनको 2 साल का सजा भी मिलेगा. सो दिस आर द करंट गाइडलाइंस रिगार्डिंग दी, आप कह सकते हो कि रिगार्डिंग द सरोगेट एडवर्टाइजिंग. So the next article is about the Artemis mission. I hope you have heard about this mission in the news currently. So the Artemis mission is basically a lunar mission by NASA, that is the US space agency. ठीक है, तो व्हाट्स इन द न्यूज़, अब ये न्यूज़ में ये आया है कि रिसेंटली ये न्यूज़ में आया है कि इट हैज़ बीन कैंसिल फॉर द सेकंड टाइम इन दिस वीक इटसेल्फ. इट हैज़ बीन कैंसिल फॉर द सेकंड टाइम. 2 बार इसे पोस्टपोन किया गया है. द फर्स्ट टाइम इट वाज बिकॉज ऑफ सम मेल फंक्शन इन द इंजन, एंड दिस टाइम द करंट टाइम इट हैज़ बीन डन बिकॉज ऑफ सम लीकेजेस दैट हैज़ बीन फाउंड इन द इंजन्स. ठीक है, अब ये जो इंजन है दैट इज द SLS रॉकेट का जो इंजन है, तो इसमें कुछ लीकेजेस हैव बीन फाउंड बिकॉज ऑफ विच द मिशन हैड टू बी कॉल्ड ऑफ फॉर द सेकंड टाइम. नाउ दिस आर्टिकल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रीलिम्स also, because any question can be asked from science and technology, and also from the mains perspective from GS paper 3 science and technology. So NASA, as I told you, it called off the Artemis mission. So we'll just see कि Artemis mission क्या है. अब देखिए Artemis जो है ना, Artemis is actually is a series of mission that is going to be undertaken by NASA. There are 3 missions. Now this particular event is about Artemis 1 के बारे में. So Artemis 1 was scheduled to be launched on 3rd September 2022, but it had to be called off because of some unavoidable technical glitches, and this technical glitches was nothing but some kind of leakages that could not be controlled, and because of which the mission was called off, we can say, without mentioning any further date. तो अभी के लिए हमें ये नहीं पता है कि this mission, ये जो Artemis 1 है, ये कब लॉन्च किया जाएगा, because it has been postponed, आप कह सकते हो कि postponed indefinitely. ठीक है, so Artemis 1 क्या है, it is an uncrewed space mission जहाँ पे लोग नहीं रहेंगे, where the Orion spacecraft, तो spacecraft का नाम क्या है, the spacecraft का नाम है Orion, will be launched on what, on the SLS. Now SLS is the name of the rocket, और इसी rocket का engine में अभी malfunctions and these leakages have been taking place. Now SLS, that is the Space Launch System, is the most powerful rocket on Earth. Till date, आज के दिन में it is the most powerful rocket on Earth, that is the SLS Space Launch System. ठीक है, so ये जो Artemis mission है, not the one but the entire mission is named after the twin sister of Apollo. I hope you have heard about this mission Apollo. Apollo is also आप कह सकते हो कि it is the name of the spacecraft which was sent by NASA only. तो NASA ने in the year 1969 के टाइम में Apollo 11 में it was the American space flight, you can say, which first landed humans on the moon. ठीक है, यहाँ पे the first person from Earth, that is Neil Armstrong, he landed on the moon on this spacecraft named as Apollo. और इसी Apollo का twin sister का नाम है, twin sister का नाम क्या है, Artemis है. So this Artemis and Apollo are nothing but these are Greek mythological characters.
So Artemis also is also known as the goddess of moon. Okay, so it is the first in a series of increasingly complex mission. As I told you, there are 3 missions. अब बाकी 2 के बारे में जो information है वो अभी तक रिवील नहीं किया गया है, ठीक है, but it is all about the human exploration. यहाँ पे humans को भी send किया जाएगा subsequently to the moon as well as the Mars. तो यहाँ पे moon के बारे में पता करके the missions will also be taking exploration to the Mars. So SLS and Orion under Artemis 1 will be launched from the Kennedy Space Center in Florida. All right. So now ये जो NASA है, so NASA except NASA also there have been a number of attempts you can say for from various different countries across the world for what, for the lunar exploration. For example, India के केस में यहाँ पे बात कर सकते हैं about the Chandrayaan 1, about Chandrayaan 2 and currently about the Chandrayaan 3 as well. तो यहाँ पे I have given you a list of all the countries of not just all the countries but about some of the important lunar missions that have been taken by various countries of the world. I want you to go through this list, and also there's also a prelims practice question which has been given in this article. So I want you guys to answer this question in the comment section, and I'll definitely reply in the upcoming video. So now the next article is from अरुणाचल प्रदेश विच आई हैव टेकन फ्रॉम द अरुणाचल टाइम्स. तो ये अरुणाचल टाइम्स में ये न्यूज़ आया था कि द राष्ट्रीय पोषण माह जो है इट वाज बीन लॉन्च इन जीरो इन द लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश. तो ये जो पोषण माह है, तो यहाँ पे पोषण माह बस ऐसा नहीं है कि इट हैज़ बीन ओनली लॉन्च इन जीरो, इट हैज़ बीन लॉन्च इन नंबर ऑफ प्लेसेस अक्रॉस इंडिया बिकॉज सितंबर का जो महीना है इट इज ऑब्जर्व बाय सिंस 2018 हैज़ बीन ऑब्जर्व एज द पोषण माह. तो ये हर जगह पे लॉन्च हुआ है बट दिस हैज़ बीन इन द न्यूज़. तो इसी के हेल्प से हम यहाँ पे जानेंगे अबाउट द पोषण माह के बारे में कि व्हाट पोषण माह इज. ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे. तो यहाँ पे इन दिस आर्टिकल ऑल्सो इट हैज बीन ऑल्सो दिस आर्टिकल ऑल्सो सेज कि जो ये पोषण माह इट हैज ऑल्सो बीन लॉन्च इन वेरियस डिस्ट्रिक्ट अक्रॉस मल्टीपल इन वेरियस विलेजेस यू कैन से अक्रॉस मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट्स इंक्लूडिंग मिकोंग इन रुक्सिंग इन इसियांग. ठीक है, तो यहाँ पे भी लॉन्च हुआ है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे. अब ये जो मंथ लॉन्ग जो ये पोषण माह है, तो यू शुड नो कि पोषण का मीनिंग क्या है. पोषण का मीनिंग है न्यूट्रिशन. ठीक है, द मीनिंग ऑफ पोषण इज न्यूट्रिशन. तो ये जो पोषण माह है, माह का मीनिंग है मीनिंग. तो ये जो न्यूट्रिशन मंथ है, तो इसमें वेरियस काइंड ऑफ एक्टिविटीज आर प्लान्ड, आप कह सकते हो, बाय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स. तो विद द वेरियस गवर्नमेंट एजेंसीज एंड डिपार्टमेंट्स दे कैरी ऑन अ नंबर ऑफ, मतलब आप कह सकते हो जो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट का जो ऑफिसर्स है, जो डिपार्टमेंट्स है, नाउ दे आर एंगेज्ड इन द नंबर ऑफ एक्टिविटीज. नाउ दिस एक्टिविटीज दे इंक्लूड द कैंपेन्स ऑन वुमेन्स हेल्थ के बारे में. ठीक है, देन द चिल्ड्रंस हेल्थ के बारे में, एजुकेशन के बारे में, वाटर कंजर्वेशन के बारे में. तो ऐसे कुछ यहाँ पे एक्टिविटीज लिए जाते हैं थ्रू आउट दिस मंथ दैट इज सितंबर. तो चलिए थोड़ा सा जान लेते हैं अबाउट पोषण अभियान और पोषण माह के बारे में. अब जैसे कि मैंने बताया कि पोषण का मीनिंग है न्यूट्रिशन. तो ये पोषण का टारगेट क्या है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट टारगेट ऑफ पोषण अभियान इज टू टैकल मेल न्यूट्रिशन. सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि पोषण अभियान से क्या किया जाता है, जो मेल न्यूट्रिशन होता है ना, तो मेल न्यूट्रिशन को यहाँ पे फाइट किया जाता है, उसके अगेंस्ट ये अभियान है. ठीक है, सो दिस पोषण अभियान इज ऑल्सो नोन एज द नेशनल न्यूट्रिशन मिशन, जो इंटरनेशनल वुमेंस डे ऑन 8 मार्च में लॉन्च किया गया था. ये दिन इंपॉर्टेंट है, कभी आपको डायरेक्टली पूछा जाएगा कि वेयर इज इंटरनेशनल वुमेंस डे ऑब्जर्व. इट इज ऑन द 8 मार्च और ये स्टार्ट हुआ था 2018 में. ठीक है, तो यहाँ पे टारगेट्स क्या था? टू रिड्यूस स्टंटिंग. स्टंटिंग का मतलब है इम्प्रॉपर ग्रोथ. अंडर न्यूट्रिशन, अंडर न्यूट्रिशन क्या होता है? इट इज अ टाइप ऑफ मेल न्यूट्रिशन ओनली. ठीक है, अब देखिए मेल न्यूट्रिशन का भी कुछ टाइप है. मतलब व्हाट इज मेल न्यूट्रिशन? इट इज बेसिकली काइंड ऑफ डेफिशिएंसी है या एक्सेस है और इम्बैलेंसेस है इन अ पर्सन्स इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट. क्योंकि कितना न्यूट्रिएंट्स लेता है ना, उसमें अगर ज़्यादा है, कम है, इम्बैलेंस है, तो उसी को मेल न्यूट्रिशन कहा जाता है. सो यहाँ पे बेसिकली 3 टाइप ऑफ कंडीशंस भी आ जाता है मेल न्यूट्रिशन में. एक हो जाता है जैसे कि मैंने बताया आपको अंडर न्यूट्रिशन. उसके बाद हो जाता है आपका माइक्रो न्यूट्रिएंट रिलेटेड. फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर कोई विटामिन नहीं मिल रहा है, कोई मिनरल नहीं मिल रहा है, तो उसे कहा जाता है माइक्रो न्यूट्रिएंट रिलेटेड मेल न्यूट्रिशन कहा जाता है. उसके बाद आ जाता है ओवरवेट. अब जो ओबेसिटी है ना, ओबेसिटी अमंग द चिल्ड्रन आप कह सकते हो, सो दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ मेल न्यूट्रिशन ओनली. ठीक है, सो दिस आर दी थिंग्स. और उसके बाद आ जाता है एनीमिया. तो एनीमिया को भी रिड्यूस करना है. अब एनीमिया क्या होता है? एनीमिया मोस्टली होता है बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12, या आप कह सकते हो इट कैन ऑल्सो टेक प्लेस बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ आयरन इन बॉडी. ठीक है, एंड ऑल्सो टू रिड्यूस द लो बर्थ वेट. ठीक है, जो जन्म के टाइम में जो
बर्थ वेट होता है ना, तो जो लो बर्थ वेट होता है उसे कम करना है। तो उस इसी को बेसिकली ये सारा टारगेट है, और ये कम करना है बाय व्हाट परसेंटेजेस, बाय 2%, 2, 3 एंड 2। तो मैंने ये इसीलिए मेंशन किया है क्योंकि कभी भी आपको ये एमसीक्यू में इस तरीके का क्वेश्चन कभी पूछा जाता है, ठीक है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, थोड़ा जान लीजिएगा। एंड ऑल्सो यहाँ पे जो स्टंटिंग मैंने बताया था, तो स्टंटिंग को भी कम, व्हाट इज स्टंटिंग? स्टंटिंग इज बेसिकली द इम्प्रॉपर ग्रोथ। तो स्टंटिंग को कम करना है अमंग दी 0 to 6 ईयर्स का जो बच्चे हैं, तो उनमें जो स्टंटिंग होता है ना, जो इम्प्रॉपर ग्रोथ होता है, उसे 2022 तक यहाँ पे 25% तक उसे कम करना है। दिस इज अबाउट द अभियान के बारे में। अब पोषण अभियान का ही एक आप कह सकते हो एक पार्ट है, एक डायमेंशन क्या है, पोषण माह है। तो पोषण माह भी 2018 से ही ये स्टार्ट हुआ है, विच इज द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर इज सेलिब्रेटेड एज द पोषण माह। और इसे इस महीने में हम स्पेशली फोकस करते हैं इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द न्यूट्रिशनल आउटकम, जो है, जो न्यूट्रिशन रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज है वो हम लेते हैं फॉर द चिल्ड्रन, फॉर द एडोलेसेंट गर्ल्स, फॉर प्रेग्नेंट वुमेन एज वेल एज फॉर द लैक्टेटिंग मदर्स, ठीक है। और यहाँ पे जो एक्टिविटीज़ होता है, एक्टिविटीज़ जो मैंने बताया था थोड़ी देर पहले आपको, तो ये एक्टिविटीज़ फॉर एग्जांपल अवेयरनेस वगैरह ये किया जाता है, विच इज़ मोस्टली फोकस ऑन किसके बारे में, फोकस ऑन द एंटी नेटल केयर। अब व्हाट इज एंटी नेटल केयर? एंटी नेटल केयर या आप कह सकते हो कि जो प्री नेटल केयर है, इट इज़ नथिंग बट द केयर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो द वुमेन प्रेगनेंसी के दौरान जो केयर मिलता है उसी को एंटी नेटल केयर कहा जाता है। उसके बाद ऑप्टिमल ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन जो है उनको, देन एनीमिया अगर किसी को है, देन ग्रोथ मॉनिटरिंग, गर्ल्स एजुकेशन, डाइट, देन राइट एज ऑफ मैरिज, सो हाइजीन, सैनिटेशन एंड ईटिंग हेल्दी, अबाउट ईटिंग हैबिट्स के बारे में। तो ये सारा एक्टिविटीज इस दौरान पोषण महीने के दौरान लिया जाता है। तो जो 0 में जो स्टार्ट हुआ था रुक्सिन का जो मैंने बताया था, तो ये महीने में द गवर्नमेंट एजेंसीज, द ऑफिशियल्स वुड बी कैरिंग आउट वेरियस टास्क व्हिच वुड बी ऑब्जर्विंग सच एक्टिविटीज, ठीक है। तो इसी के रिलेटेड आई हैव गिवन अ प्रीलिम्स बेस्ड क्वेश्चन। इफ यू हैव द आंसर देन काइंडली रिप्लाई इन द कमेंट सेक्शन। आई विल डिस्कस दिस आंसर इन द नेक्स्ट वीडियो। Now these are the list of the question that I had given in the last video. So let's look at the answers. Now one thing, in the last question मैंने question number 4 थोड़ा सा गलत बताया था, ऑप्शन में भी थोड़ा गलती था, there was a typing mistake, so which I have rectified in this present video. All right. So the answers, the first one is obviously it is Mikhail Gorbachev, जो मैंने कल बताया था, the reforms which were brought about by him, ठीक है, that is perestroika and glasnost. He was a former Soviet leader. I told you about him. अगर नहीं देखा वीडियो, I would request you to view it once. उसके बाद नामसाई, as I told you, now number 2, नामसाई is the only aspirational district of Arunachal Pradesh. There is only one, minded, all right. And उसके बाद जो क्वाड ग्रुप है, जो देखिए मैंने कल बताया था कि क्वाड ग्रुप इज फॉर्म ही किया गया है तो काउंटर चाइनीज इन्फ्लुएंस, ठीक है। तो नेचुरली चाइना इसका पार्ट नहीं होगा, सो चाइना इज द करेक्ट आंसर, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द क्वाड ग्रुपिंग्स। एंड देन इट इज कल्याण चौबे, मैंने कल ऑप्शन गलत बताया था, सो कल्याण चौबे इज द current president of the All India Football Federation, who had come to the position by defeating Baichung Bhutia by a huge margin, I told you. And then Praful Patel कौन थे? He was the one before him. इनके पहले it was Praful Patel, then N.A. Harris is the vice president, and most importantly याद रखिएगा, I told you, Kipa Ajay is the new elected treasurer of the All India Football Federation. So this was all from my side for today. Thank you so much for joining in, guys. Bye bye. Have a great day. Thank you.